آپ جان چکے بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے مغربی ہواؤں کی، جس کا طاقتور سلسلہ مغربی بلوچستان میں داخل ہو چکا ہے۔ صبح کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش اور برف باری ہوئی، جس سے سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا۔ پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ کوئٹہ چمن اور کوئٹہ ذوب شاہراہ پر گاڑیوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری اور بارش جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی، کہیں تیز بارش اور کہیں بوندا باندی ہوئی، کہیں بادلوں کے ڈیرے ہیں، جس سے موسم خاصا خوشگوار ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید بادل برسنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑوں پر برف پڑنے اور سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہلکی بارش۔ نارتھ کراچی، سرجانی، نارتھ ناظم آباد میں بوندا باندی ہوئی، جس کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں 2 روز تک بادل برسنے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسم نے لی انگڑائی۔ کراچی میں باران رحمت سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کراچی میں بارش کی پیشگوئی سے 1 روز پہلے ہی بادل برس پڑے۔ نارتھ کراچی، سرجانی، نارتھ ناظم آباد میں بوندا باندی۔ سپر ہائی وے اور گلشن معمار میں بھی رمجم سے ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا اور موٹر سائیکل والوں کی تو شامت ہی آ گئی۔ موسم بھیگا تو شہریوں نے گرم کپڑے اور چھتری پھر سے نکال لی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے کراچی میں 2 روز تک وقفے سے بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ملتان میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ سردی کی شدت بھی بڑھ گئی۔ درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملتان شہر اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ موسم کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر عباس، آپ سرکٹ ہاؤس روڈ پر موجود ہیں، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں موسم کی؟ جی بالکل، ملتان میں گزشتہ رات سے جو ہے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کی وجہ سے جو ہے موسم انتہائی خوشگوار بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سردی کی شدت بھی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اس وقت محکمہ موسمیات کے مطابق جو درجہ حرارت ہے وہ کم سے کم جو درجہ حرارت نوٹ کیا گیا ہے وہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کہ یہ بارش کا جو سلسلہ ہے آئندہ مزید 2 روز تک جو ہے وہ جاری رہے گا اور ملتان شہر میں اور گرد و نواح میں جو ہے یہ بارش ہوتی رہے گی۔ آج دن کے اوقات اور رات میں بھی جو ہے بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے کہ مزید یہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب اگر بات کریں شہر کے حوالے سے تو گزشتہ رات سے جو بارش ہو رہی ہے ہلکی اور تیز بارش، اس سے جو ہے شہری کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے پانی بھی کھڑا ہو گیا ہے بارش کا، اور دوسری جانب سردی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے اور موسم جو ہے اس وقت انتہائی خوشگوار ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حیدر عباس تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ رخ کرتے ہیں اٹک کا، جہاں پر گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے دوران گھریلو صارفین گیس کی نعمت سے محروم ہیں۔ مزید اسی حوالے سے جانیں گے ہمارے نمائندے ایاز خان سے۔ ایاز خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، ملک بھر کی طرح اٹک میں بھی باران رحمت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ کل آسمان پر گہرے بادل آنے کے بعد کل رات نماز مغرب کے بعد سے ہی بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ بدستور اس وقت جاری ہے۔ یہ بارش زمیندار حضرات کے لیے کافی مفید ہے، کیونکہ اٹک کے بیشتر جو علاقہ ہے وہ بارانی زمین ہے اور اس باران سے ان کے لیے ایک نیا رحمت اور ایک نئی نوید لا رہی ہیں۔ خاص کر گندم کے کاشت والے جو زمیندار ہیں ان کے لیے اگر دوسری جانب ہم بات کریں گے، موسم کے حوالے سے سرد ہو چکا ہے، کیونکہ شہریوں نے گرم چادریں اور گرم بنین وغیرہ اوڑھنا شروع کر دی ہے۔ اگر ہم بات کریں گے گھریلو صارفین کے حوالے سے، بہت شکریہ ایاز خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ رات سے بارش، بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شدید برف باری کے باعث وادی لیپا، گریز ویلی شاہراہ بند ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ متعدد علاقوں میں بجلی اور مواصلات کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے، ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں موجود ہیں ہمارے بیورو چیف محمد اقبال میر۔ آگاہ کیجیے گا۔
کشمیر میں گزشتہ رات سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد سردی کی جو شدت ہے اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، اور بیشتر بالائی علاقوں کی جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ بھی بند ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ وادی لیپا کی جو مرکزی شاہراہیں ہیں، برتھوار گلی اور شیڑ گلی، یہ دونوں شاہراہیں جو ہے عام ٹریفک کے لیے بند ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے 32 گاؤں پر مشتمل جو آبادی ہے وہ محصور ہو کے رہ گئی ہے۔ اس وقت چننیا، چمولا، کسر کوٹ، نوکوٹ اور وڈا کولی کے علاقوں میں شدید برف باری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر عوام کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ وہاں بجلی اور مواصلات کا نظام بھی جو ہے وہ درم برہم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم وادی نیلم کی بات کریں تو اس کے بیشتر بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت جو گریس ویلی ہے وہاں پر جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہ بھی بند ہو چکی ہیں، جبکہ رابطہ سڑکیں بھی جو ہے وہ بند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جاگراں ویلی ہے اس کے بھی بالائی علاقوں میں برف باری بہت زیادہ ہوئی ہے، اس کی بھی رابطہ سڑکیں جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، اور وہاں پر بھی بعض علاقوں میں مواصلات کا نظام بھی درم برہم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھی بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مظفر آباد کی بات کریں تو مظفر آباد کے جو زرعی علاقے ہیں یہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اس کے بیشتر بالائی علاقوں کے اندر بھی برف باری ہو رہی ہے، اور جو سیاحتی مقام پیر چناسی سرا ہے اس کے ساتھ ساتھ سدبند، پنجکوٹ اور کوئے مکڑا کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی برف باری جاری ہے۔ وہاں کے علاقوں میں رہائش پذیر عوام کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور رات کے گئے سے وہاں پر بھی بجلی کا نظام جو ہے وہ در چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی مظفر آباد ہے انہوں نے بھی یہ الرٹ جاری کر دیا ہے کہ آئندہ ہفتے تک آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وادی نیلم، جہلم ویلی، باغ، راولہ کوٹ اور حویلی کے بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ بہت شکریہ اقبال میر تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور خیرپور سے افسوسناک خبر، تیز رفتار مسافر کوچ الٹ گئی، خواتین اور بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق جبکہ 15 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حادثہ رانی پور قومی شاہراہ پر گڈیجی پل کے قریب پیش آیا۔ متاثرہ کوچ پشاور سے کراچی جا رہی تھی۔ جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کے بعد گورنمنٹ اسپتال اور رانی پور میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ بات کریں گے کرونا وائرس کی تو پاکستان میں جان لیوا وائرس کرونا کے وار جاری ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس 24 گھنٹوں کے دوران 2 جانیں لے گیا۔ کرونا سے ملک میں مجموعی اموات 28,945 ہو گئیں۔ کرونا ٹیسٹوں کی رپورٹس مثبت آنے کی شرح 1.42% رہی ہے۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے، ہمارے نمائندہ نیئر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیئر علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل شمائلہ، گزشتہ 24 گھنٹے کے حوالے سے NCOC کی جانب سے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 2 اموات رپورٹ ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے، جبکہ ملک بھر میں کرونا کے باعث اموات کی مجموعی تعداد 28,945 ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 630 نئے کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 44,198 کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 1.42% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد جو ہے وہ 12,97,865 ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں کرونا میں مبتلا 642 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ اگر اسلام آباد کی بات کی جائے شمائلہ تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 14 اومیکرون کے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد اومیکرون کے اب تک کے اسلام آباد کی کیسز کی تعداد 100 ہو چکی ہے۔ جی بہت شکریہ نیئر علی تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ حکومت کا بیرون ممالک سے پاکستان آنے والی پروازوں سے متعلق بڑا فیصلہ۔ بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے پرواز سے 48 گھنٹے قبل کورونا PCR ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ اومیکرون کے پیش نظر یورپی ممالک سے پاکستان پہنچنے والے مسافروں کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے آنے والے 50% پروازوں کے مسافروں کے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہوں گے۔ نئی ٹریول ایڈوائزری پر 5 جنوری سے عمل درآمد ہوگا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شوگر بزنس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا مقدمہ، احتساب عدالت میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتوں پر سماعت۔ دونوں لیگی رہنماؤں نے حاضری مکمل کرا لی۔ سماعت دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے محمد فیصل خان سے۔ فیصل خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، شوگر اسکینڈل کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی آج عبوری ضمانت ختم ہو رہی تھی اور آج وہ عدالت پیش ہوئے، کیونکہ عدالت میں فزیکلی پیش ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آج وہ پیش ہو کے انہوں نے اپنی حاضری مکمل کرائی اور عدالت میں ان کے وکیل جو ہے اطاعت تاڑر، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جو مین وکیل ہیں امجد پرویز وہ آج جو ہے نہیں آ سکے، وہ ابھی
अदालत में बिजी हैं तो आप अगली डेट दे दें। अदालत कह रहा था कि आप बताएं कि कब वो पेश हो जाएंगे। मैंने आज हर हाल में केस की समाअत करनी है, तो अदालत को इन्फॉर्म किया गया कि वो 12 बजे तक आएंगे। अदालत ने 12 बजे तक जो है हमदा शहबाज और शहबाज शरीफ की हाजिरी जो है बकायदा उनको कहा कि आपने हर हाल में पेश होना है, और केस की समाअत जो है 12 बजे तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि इन पे इल्जाम है कि इन्हें शुगर। बहुत शुक्रिया फैसल खान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बैंकिंग कोर्ट में शुगर मिल्स कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से मुत्तलिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत के रूबरू पेश हो गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज पेश न हुए। अदालत ने अदालती दायरे इख्तियार पर समाअत 12 बजे तक मुलतवी कर दी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने साल 2019 में अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। PTI के रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून 14 करोड़ 7 लाख रुपए टैक्स अदा करके पहले नंबर पर रहे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 98 लाख, शहबाज शरीफ ने 82 लाख, आसिफ जरदारी ने 22 लाख और बिलावल भुट्टो ने 5 लाख रुपए टैक्स दिया। उस्मान बुज़दार ने सबसे कम टैक्स सिर्फ 2000 रुपए दिया। राहिल हसन की रिपोर्ट। अरकान पार्लियामेंट के टैक्स गोशवारों की तफसीलात मंजर आम पर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अरकान पार्लियामेंट के टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने 2019 में 98,54,959 रुपए, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 82,42,662 रुपए, आसिफ जरदारी ने 22,18,229 रुपए और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 5,35,243 रुपए टैक्स अदा किया। करोड़ों रुपए टैक्स अदा करने वालों में PTI नंबर ले गई। PTI रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून ने 14 करोड़ 7 लाख रुपए, तला महमूद ने 3 करोड़ 22 लाख, रुकन पंजाब असम्बली मुमताज अली ने 2 करोड़ 96 लाख रुपए, वजीर खजाना शौकत तरीन ने 2 करोड़ 66,27,737 रुपए, साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने 1 करोड़ 17,50,799 रुपए, सेनेटर रजा रब्बानी ने 1 करोड़ 55,05,493 रुपए और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने 1 करोड़ 39,09,327 रुपए टैक्स दिया। सबसे कम टैक्स देने वालों का रिकॉर्ड भी PTI के नाम रहा। वजीर आला उस्मान बुज़दार, सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी और फयाजुल हसन चौहान ने 2-2 हजार रुपए टैक्स अदा किया। दीगर अरकान पार्लियामेंट में शाहिद खाकान अब्बासी ने 48,71,277 रुपए, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने 8,51,955 रुपए, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 19,21,914 रुपए, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने 66,258 रुपए, वजीर आला बलोचिस्तान कुद्दूस बजिंजो ने 10,61,777 रुपए टैक्स दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 5,55,794 रुपए, वफाकी वजीर असद उमर ने 42,72,426 रुपए, फवाद चौधरी ने 1,36,808 रुपए, ख्वाजा साद रफीक ने 2,69,414, ख्वाजा आसिफ ने 2,03,386 रुपए, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने 9,32,835 रुपए और वफाकी वजीर अली जैदी ने 10,47,808 रुपए टैक्स अदा किया। चिनिया से खबर दें, जहां खाद का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद के बहरान पर काबू पाने के लिए इंतजामिया भी हरकत में आ गई। मुख्तलिफ मकामात पर 7 सेल पॉइंट्स बना दिए गए हैं। 20,000 से जायद ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बोरियां खाद कब्जे में लेकर किसानों में तकसीम की जा रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आज़म चौधरी असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर नदीम के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी आज़म। जी बिल्कुल, पंजाब के दिगर शहरों की तरह चूनिया शहर और इसके गिरदोनवा में भी खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मकामी इंतज़ामिया वो भी हरकत में आ चुकी है और मुख्तलिफ मकामात पर सेल पॉइंट भी लगा दिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत नदीम साहब मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जान लेते हैं कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि ये 1 दिसंबर से मैंने इधर असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर चूनिया ज्वाइन किया है। 1 से लेकर आज तक तकरीबन 18,000 बोरी सप्लाई और सेल हो चुकी है इधर। और हमारे 7 पॉइंट हैं, जिसमें इलाहाबाद मेन पॉइंट है, इलाहाबाद के बाद तलवंडी है, अरजानीपुर है और चूनिया और छंगा मंगा। तो इस पॉइंट पे हमारी सेल जारी है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि
तहसील भर में 7 मुख्तलिफ पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ किसानों को देने के लिए जो है वो खाद की बोरियां मुहैया की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आजम चौधरी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब बात करते हैं आजकल के सबसे बड़े अवामी मसले की। सर्दी की शिद्दत में इजाफा क्या हुआ कि गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में भी 3 वक्त गैस फराहमी का वादा पूरा नहीं किया जा सका है। खाना तो दूर, चाय पकाने तक के लिए गैस नहीं आ रही। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से बात करते हैं अंसर बशीर से। अंसर बशीर बताएगा किन मुश्किलात का सामना है शहरियों को। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में इन दिनों शदीद सर्दी है और आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मीरपुर भी इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। जहां पर एक जानब शदीद सर्दी है तो दूसरी जानब जो गैस का बहरान है वो भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह मीरपुर में भी गैस लोड शेडिंग के बायस जो शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मीरपुर शहर में 16 से 18 घंटे तक गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। उसमें 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दिन को और 2 घंटे रात को जो गैस है वो फराहम तो की जाती है, लेकिन गैस का प्रेशर इतना कम है कि खाना बनाना तो दूर की बात है, उसमें चाय भी मुश्किल बनती है। शहरी इस वक्त महंगे दामों एलपीजी और लकड़ी खरीदने पर मजबूर हैं और महंगाई के इस दौर में बाहर का खाना जो है वो शहरियों के लिए एक चैलेंज बन चुका है। शहरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि जो गैस की किल्लत है इसको दूर किया जाए ताकि शहरी इस परेशानी से निजात हासिल कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अंसर बशीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने अरकान पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में शौकत तरीन का कहना था कि अरकान पार्लियामेंट टैक्स की अदायगी में लोगों के लिए मिसाल बने। एक टैक्स कल्चर जो है वो हमने अगर बनाना है तो शुरुआत तो पार्लियामेंटेरियन से ही होनी चाहिए, बिकॉज हम ही कहते हैं लोगों को कि आप टैक्स दें, और जब हम ये साबित कर देंगे कि हम ना सिर्फ टैक्स देते हैं कि लेकिन ये भी है कि हम डिस्क्लोज करते हैं कि हम क्या टैक्स दे रहे हैं, तो उससे इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इलेक्शन कमीशन में असासों की तफसीलात जमा कराने का मामला। कौमी असम्बली के 240 मेंबरान, सेनेट के 83 मेंबरान ने इलेक्शन कमीशन में असासों की तफसीलात जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 जनवरी तक तफसीलात जमा न कराने वालों की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन में असासों की तफसीलात जमा न कराने वालों में खुरम दस्तगीर, फहमीदा मिर्जा, कासिम सूरी, अख्तर मैंगल, हिना खर, खालिद सिद्दीकी, शाहजैन बुगटी समेत कौमी असम्बली के 102 अरकान शामिल हैं। कौमी असम्बली के 240 मेंबरान, सेनेट से 83 ने तफसीलात जमा करा दी, जबकि सूबाई असम्बली पंजाब से 244, सिंध असम्बली से 137 ने तफसीलात जमा कराई हैं। केपी असम्बली से 105, बलूचिस्तान असम्बली से 51 ने तफसीलात जमा करा दी, जबकि इलेक्शन कमीशन में 331 मेंबरान ने ताहाल तफसीलात जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 जनवरी तक तफसीलात मौसूल न हुई तो उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। मुल्क भर में कोरोना की 5वीं लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची और लाहौर में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो गया। पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया। एनसीओसी ने लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम का फैसला कर लिया। मुल्क भर में कोरोना की 5वीं लहर, ओमिक्रॉन में तशवीशनाक इजाफा। कराची में कोरोना की नई किस्म के मजीद 10 केसेस सामने आ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2 से बढ़कर 6% हो गई। महकमा सेहत का कहना है ओमिक्रॉन की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 54 हो गई। लाहौर में भी ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों में कोरोना के 188 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 38 अफराद में ओमिक्रॉन की तशखीस हुई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेक्रेटरी हेल्थ केयर इमरान सिकंदर बलोच ने आइंदा दिनों में पाबंदी आयद होने का भी इशारा दे दिया। एनसीओसी के इजलास में भी लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इक़दाम लेने का फैसला किया गया। असद उमर ने खबरदार किया कि कोरोना की 5वीं लहर ओमिक्रॉन तेजी से फैल रही है। शहरी मास्क पहने, समाजी फासला रखें। दूसरी जानिब एनसीओसी ने मुल्क भर में बूस्टर डोज का आगाज भी कर दिया है। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत की गई है।
सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में मिनरल वाटर प्लांट में सफाई के दौरान गैस लीकेज से आग भड़क उठी। सुपरवाइजर समेत 5 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। मरने वालों की शनाख्त शिराज, गुलाम हुसैन, इमरान और शहरियार के नामों से हुई। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। नून लीग के एमपी बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तफ्तीश में अहम पेशरफ। शूटर्स को असलहा देने वाला मरकजी मुलजिम अफजल गिरफ्तार। मुलजिम की निशानदही पर 2 अहम किरदार भी सामने आ गए, तहम पुलिस अहम किरदारों को गिरफ्तार न कर सकी। लाहौर से सालिक नवाज की रिपोर्ट। पुलिस के मुताबिक एमपीए बिलाल यासीन पर हमला करने वाले शूटर्स की तस्वीर हासिल कर ली गई हैं, जबकि इन्हें असला फराहम करने वाला मरकजी किरदार अफजल गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर मुलजिम अफजल ने तहकीकात में बताया कि वो शूटर्स को जानता नहीं, लेकिन गड़ी शाहू में सिक्के बेचने का कारोबार करने वाले साजिद ने असला फराहम करने का कहा था। तफ्तीश के लिए राब्ते पर मुलजिम फरार हो गया। इसका एक साथी मोहसिन भी फरार है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दोनों मुलजमान ने शूटर्स को फायरिंग के लिए भेजा था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद वाक़े के मुहर्रकात का इल्म होगा। इधर फुटेज में बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वाले हमलावरों को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। एक हमलावर ने सब्ज जबकि दूसरे ने स्याह जैकेट पहन रखी थी। हमले के बाद मुलजमान ने कुछ दूर जाकर चेहरे से रुमाल हटा लिए थे। सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन जमातों को तनकीद के निशाने पर रख लिया। कहते हैं अपोजिशन जमातें फाइनेंस बिल पर वावेला कर रही हैं। अपोजिशन के जाली बयानिए का डट कर मुकाबला करेंगे। काशिफ रफ़ी की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने शुरका को फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को मुल्की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों को फाइनेंस बिल से मुतल्लिक अबहम दूर करने की हिदायत की। बोले फाइनेंस बिल को अवामी सतह पर मौसर तरीके से नहीं बताया जा सका। अपोजिशन के जाली बयानिए का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी तर्जुमानों को हिदायत की कि रिफंड और रिबेट के बारे में अवामी कंफ्यूजन को दूर किया जाए। अवामी सतह पर बताया जाए कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी मुल्की मुफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ मुल्की एक्सपोर्ट्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ज़राअत में बेहतर मैकेनिज्म मुतारिफ होने से इनकलाब बर्पा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जैतून की काश्त और झींगों की फार्मिंग वक्त की अहम जरूरत है। इससे बरामदात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुल्की रिजर्व 25 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जिस पर कोई बात नहीं हो रही। नवाज शरीफ वापस आएं या पैसे वापस करें या फिर मुकदमात का सामना करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा एहतसाब के एजेंडे पर इलेक्शन जीतते हैं। वोटर समझता है कि एहतसाब मुकम्मल होना चाहिए। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। फजल रहमान का कौमी सियासत लीड करना बदकिस्मती है। अगर आप ये कहेंगे कि इस तरह से कोई ब्लैकमेल होगा और केसेस जो है उनमें रिलीफ दे देंगे, इमरान खान दे देगा या पीटीआई इससे पीछे हट जाएगी, तो ये तो नहीं होना। इमरान खान पहले भी वाजे कर चुके हैं और पीटीआई भी वाजे कर चुकी है। हम एक एहतसाब के एजेंडे के ऊपर जो है वो इलेक्शन जीते हैं। हमारा वोटर समझता है कि एहतसाब का अमल मुकम्मल होना चाहिए। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पीटीआई के अलावा कोई सियासी जमात इस कद की नहीं है कि वो 800-900 सीटों के ऊपर कैंडिडेट खड़े कर सके। पीएमएलएन जो है वो एक इलाकाई पार्टी है, सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। इसी तरीके से पीए जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध की पार्टी है। फजल रहमान साहब अगर अपोजिशन को लीड कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है। दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीटीआई कौमी जमात नहीं आरजी पनाहगाह है। फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगजेब ने कहा कि सियासी यतीमों की पनाहगाह को कौमी सियासी जमात कहने के लिए आपकी जैसी ही ढिठाई और बेशर्मी दरकार है। सियासी यतीमों की पनाहगाहें कौमी जमातें नहीं कहलाती। कौमी जमातें आरटीएस बिठाकर इक़्तिदार में नहीं आती। पर्चियों, सिफारिश और भर्ती के कोटे से फैज़याब होने वाले कुछ अरसे बाद सियासी यतीम बनकर दरबदर हो जाएंगे।
वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के 9 खुफिया अकाउंट्स पकड़े जाते हैं। नून लीग नहीं बताती उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। क्या ये पैसे वैसे ही आ रहे हैं जैसे उसामा बिन लादन देते थे? भवन दास 3 करोड़ रुपए जमा कराता है। भवन दास कहीं मोदी का कज़न तो नहीं? पीपी 2 अकाउंट्स बताती है और 10 छुपाती है। MLN ने जो 9 अकाउंट्स छुपा रखे थे, ना उसका कोई बैंक ड्राफ्ट दिखा रहे हैं, ना उसका ये जराए कोई बता रहे हैं, तो ये पैसे कहां से आए हैं? क्या ये पैसे नून लीग के अकाउंट में उसामा बिन लादन देते थे? भवन दास 3 करोड़ रुपया जमा करवा देते हैं। अब ये भवन दास पता करें कि ये भवन दास कहां का रहने वाला है, कोई मोदी का कजन तो नहीं है जो पैसे जमा करवा रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PPP है, वो अपने जो 12 अकाउंट्स में से 2 अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन में मेंशन कर देती है, 10 अकाउंट्स को ये छुपा लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमने 40,000 अपने डोनर्स का रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में जमा करवाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गरीब ममालिक का सबसे बड़ा मसला मनी लॉन्ड्रिंग करार दे दिया। कहते हैं हर साल 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से चोरी होकर अमीर मुल्कों में चला जाता है। एलीट क्लास गरीब मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। इस्लामाबाद में पाक चीन बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होकर अमीर मुल्कों में चला जाता है। एलीट लोग गरीब मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। हमारा मुल्क से बाहर डॉलर जाते हैं, उनको कम करना है, जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, वो इंडस्ट्रीज हमने उनको इनकरेज करना है। मनी लॉन्ड्रिंग है, ये एक बहुत बड़ा मसला है सारी गरीब मुल्कों का, उनकी एलीट पैसे चोरी करके बाहर भेज देती है। वजीर आजम ने कहा कि सरमायाकारी में रुकावटों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। IT एक्सपोर्ट सिर्फ 2 साल में दुगनी हो गई है। हमें ज़राअत को मजीद फरोग देना होगा। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है IT की, उसके अंदर भी हम हिंदुस्तान हमारे 20 साल पहले किधर था, आज उसकी एक्सपोर्ट्स देखें और आज हमें देखें कि, और वो सिर्फ 2 सालों के अंदर थोड़ा से 1 साल में बल्कि थोड़ा इंसेंटिव दिया है तो तकरीबन दुगनी हो गई हमारी IT एक्सपोर्ट्स। इससे कबल चीन के सफीर तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती, बाहमी और हर सतह पर बेहतरीन ताल्लुकात हैं। CPEC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। Continuously unleashing the positive effects of CPEC in promoting growth and improving people's livelihood. पाक चीन बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम में 18 चीनी और 19 पाकिस्तानी कंपनियां शामिल हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान में पायदार सरमायाकारी, बरामदी सनतों की तामीर और तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में तावन बढ़ाना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। शेख रशीद कहते हैं 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वाले होश के नाखून लें। इमरान खान अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात की। इस मौका पर सियासी सूरत-ए-हाल, बल्दियाती इलेक्शन में दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। काफली का हुकूमत के साथ मिलकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ने पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि सूबे में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए हैं। शेख रशीद का कहना था कि अपोजिशन टोले के हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है। 23 मार्च पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। परवेज इलाही का कहना था कि हम खलूस नियत से इत्तेहाद को आगे बढ़ा रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में मुश्तरका उम्मीदवार सामने लाने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पीपल्स पार्टी का अच्छा वक्त शुरू हो गया। आसफा भुट्टो को इस साल सियासत में लाया जाएगा। इमरान खान के आइंदा वज़ीर आज़म बनने का इम्कान नहीं। बिलावल 2022 में शादी कर सकते हैं। माहिरीन इल्म नजूम ने न्यूज़ 1 के प्रोग्राम में अहम पेशगोइयां कर दी। साल 2022 में कौन, कहां और कैसा होगा, माहिर उलूम नुजूम की पेशगोइयां सामने आ गई।
सितारों के इल्म की माहिर सामिया खान ने नया साल पीपल्स पार्टी के लिए लकी करार दिया। कहा आसिफा भुट्टो को इस साल सियासत में लाया जाएगा। बिलावल के लिए अच्छी खबर है, उनकी शादी इसी साल होगी। मरियम नवाज के वज़ीर-ए-आज़म बनने का इम्कान नहीं है। इस फैमिली में अगर आप मैंने सबकी जब जायचे देखे तो आसिफा भुट्टो के लिए मैंने उनकी पुप्पो को बोला कि आप इनके ऊपर जो है ना मेहनत करें। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इस साल में आसिफा जी भी प्रॉपर लॉन्च हो जाएंगी। 2022 में बिलावल भुट्टो की शादी हो सकती है, यानी आपका कहना ये है? 100% सितारा शादी का इम्कान दे रहे। मरियम नवाज साहिबा मुझे उस पोजीशन पे नजर नहीं आती जिसके लिए लोग सोच रहे। माहिर इल्मे नजूम कनान चौधरी ने नया साल रिकवरी का करार दिया। पेशगोई की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इस साल कोई मसला नहीं होगा। नवाज शरीफ के वापस आने का इम्कान नहीं है। पीपल्स पार्टी का अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। और अगर इसको मैं कहूँ कि ये रिकवरी का साल होगा, जितना डैमेज हो चुका है तो ये गलत नहीं होगा। ये बहुत अच्छा साल है, पॉजिटिव है। आगे की प्रेडिक्शन मेरी उसी दिन से ये है, अब भी यही है कि खान साहब अपने 5 साल आराम से पूरे करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन किया है उनकी वतन वापसी का, तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे। अभी पीपल्स पार्टी का लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। कार्ड रीडर आलिया नजीर ने दावा किया कि नवाज शरीफ इलेक्शन के ऐलान के बाद वापस आएंगे। नहीं लगता कि इमरान खान आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। साल 2022 में अफगानिस्तान टूट सकता है, पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। नवाज शरीफ उस वक्त वापस आएंगे जब इलेक्शन अनाउंस होंगे, उससे पहले वो वापस नहीं आएंगे। फॉल्ट लाइन्स ऐसी बनी हुई है अफगानिस्तान में कि वो टूट सकता है, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान उनकी मदद को पहुँचेगा। माहिर इल्मे नजूम गुलाम अब्बास ने कहा कि हुकूमत के लिए 15 मार्च से 26 मार्च बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म के सितारे बंद गली में जा चुके हैं। ये जो 2022 है, इसके जो पहले 3 स्पेल हैं खास तौर पे हुकूमत के लिए मार्च तक, 15 मार्च से लेके 26 मार्च तक बहुत अहम है। इस वक्त जो है इमरान खान साहब के सितारे बंद गली में चले गए हैं। उन्होंने पेशगोई की साल 2022 में 2 बड़े ज़लज़ले कहीं भी आ सकते हैं। कराची में जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी रहा। धरने में शरीक बच्चों ने दिन में फुटबॉल खेली तो रात में स्टेज बॉक्सिंग रिंग में बदल गया। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। तरमीमी एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। सिंध असेंबली के बाहर नौजवान दिन भर फुटबॉल खेलते रहे। रात ढलने पर धरना बॉक्सिंग के अखाड़े में बदल गया। बॉक्सर्स ने ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए। धरने के चौथे रोज खवातीन की बड़ी तादाद धरने में शरीक हुई। कानून में तरमीम असेंबली से कराई जा सकती है, लेकिन अपोजिशन जमातें असेंबली में बात नहीं करती। पीटीआई ने बल्दियाती नुमाइंदों को बरतरफ कर दिया और हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वज़ीर इत्तलात सईद गनी की ये बात है। इस कानून में मजीद भी बेहतरी की गुंजाइश है। जो फोरम है कानून को तब्दील करने का, वो असेंबली का फोरम है। संजीदगी का आलम तो ये है कि जब आप जिस जगह खड़े होकर आप तब्दीली करवा सकते हैं कानून में, उस फोरम को तो अब इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमने इख्तियारात में इजाफा किया है। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को वक्त उन्होंने पूरा नहीं करने दिया और बेबुनियाद इल्जाम लगा के पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। कल जो पीटीआई के अरस्तु हैं वो यहाँ आकर ये फरमाते हैं लोकल गवर्नमेंट कानून है वो पाकिस्तान के लिए खतरा है। जो माहिरे मईशत हैं कि पीटीआई का जो IMF की जानिब से दिया गया मिनी बजट है वो मुल्क दुश्मनी है। अब वो सुबह सिंध में कहते हैं कि जनाब हम जो है हुकूमत बनाएंगे। अब अगर 2-4 महीने में बल्दियाती इलेक्शन सिंध में होते हैं तो इनका हशर जो पीटीआई का हशर हुआ है KPK में, उससे बुरा हशरिया होना है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 27 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में पोलिंग 27 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की दरख्वास्त पर दूसरे मरहले की तारीख तब्दील करने का फैसला किया। नून लीग ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जनवरी में हज़ारा डिवीज़न में शदीद सर्दी होती है, जिसके बायस वोटर्स का निकलना मुश्किल होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कौमी सेहत कार्ड को वफाकी हुकूमत का फ्रॉड करार दे दिया। कहा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर से लोग सिंध में इलाज करवा रहे हैं। सेहत कार्ड का मतलब है अब सरकार कुछ नहीं कर सकती।
सिंध हुकूमत के विफाकी हुकूमत पर लफ्जी वार सेहत कार्ड को भी बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। कहा केपी हुकूमत कुछ करती तो इलाज के लिए लोग कराची क्यों आते। दीगर सूबों से इलाज के लिए आने वाले मरीजों की तफसीलात जारी कर दी। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हालिया चंद हफ्तों में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मैं एक बार फिर हुकूमत सिंध की जानिब से शहरियों को ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि SOPs को फॉलो करना शुरू करें। मुर्तजा वहाब ने सिंध में ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए शहरियों से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अपील कर दी। मैं समझता हूँ कि सेहत कार्ड भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि PTI की जानिब से स्टार्ट किया जा रहा है। हमारे अस्पतालों में सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, मुफ्त इलाज कराते हैं। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल सही चल रहे होते, पंजाब बलूचिस्तान इस्लामाबाद के अस्पताल सही चल रहे होते, तो लोग वो पेशेंट्स सूबाई सिंध का रुख नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बल्दियाती कानून में तरमीम से मुतालिक अपोजिशन समेत दीगर जमातों को मुज़ाकरात की भी पेशकश की। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने सिंध के नए बल्दियाती कानून को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सूबाई हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों से इख्तियारात छीन कर मालियाती और इंतज़ामी मामलात खुद लेना चाहती है। सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी कानूनी जंग लड़ने के लिए भी तैयार। एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पिटीशन दायर करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी सिंध के वसाइल पर कब्जा कर रही है। वो बल्दियाती और इंतजामी मामला अपने हाथ में लेना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अदालत आलिया कि वो तेज रफ्तारी के साथ इस पूरे अमल को इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे और तरजीही बुनियाद के ऊपर इस केस को देखेंगे, इसलिए कि अब बिल्कुल बल्दियाती इंतखाब के सामने खड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी दोहरा काम कर रही है। एक तरफ वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। हाफिज नईम ने कहा कि अदालतों से तवक्को है कि जल्द इसका फैसला करेगी। अगर अदालत में इंसाफ में ताखीर होगी तो पीपल्स पार्टी की फस्तायत में तेजी आएगी।